So, dear students, today we are going to discuss the second unit, trait and type approach of personality. And under this unit, we have to study four approaches, four theories: Alport, Kettle, Isaac, or five-factor model. Type and trait approach of personality is more or less based on the factor analysis approach. In trait approach, we generally aware about the work of Alport and Kettle. And in type approach, we can say Eysenck and height factor model. But exactly that is not the type, that is the dimensional approach. Because several traits formulate a particular dimension. So they are dimensional. If we exactly talk about the type approach, that is different thing. And in type approach, we can see the work of Presmer, Sheldon, and extension of that. Presmer and Sheldon divided personality on the basis of physical constitutions. And further, you can see the work of Jung, Carl Gustav Jung, who discriminated different types in extraversion, introversion. And after that, there are several trait approach: Eysenck, Kettle, Alport. So Kettle and Alport, these two are purely uh, trait approach originator, and Eysenck is related to the dimensional approach. That is the further extension of trait. So dimensions which were already proposed by Jung were also proved by the research work of Eysenck, but Eysenck claimed that his work is based on biological basis. So sometimes his theory of personality, also known as biological theory of personality, and further in development of this factor analysis approach, Macrae, Costa, Goldberg, and Olay Pigeon, these were the researchers who have developed the five-factor model. So today we are going to discuss about Alport theory of personality and see what is this Alport theory of personality. In this Alport theory of personality, I will discuss about the overview of psychology of individual, biography of Alport, Alport approach to personality theory, structure of personality, motivation, study of individual related research, critique of Alport and concept of humanities. So this is the outline of today's lecture. First of all, see the how Alport see the individual. What is the meaning of individual for the Alport? Alport इंडिविजुअल को किस रूप में देखते हैं? अगर हम उसको देखते हैं तो कहते हैं कि सबसे पहली चीज की आल्पोर्ट इंडिविजुअल के यूनिकनेस पर फोकस करते हैं। यूनिकनेस का मतलब होता है हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं और हमारी जो है भिन्नता में भी जो है एक तरह से यूनिकनेस है। इसको आप कहें एकाकीपन कह सकते हैं, एक अलग तरह का, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। दूसरी चीज क्या है कि जनरल ट्रेट्स डू नॉट कैप्चर इंडिविजुअलिटी। तो जो जनरल ट्रेट्स हम लोग यूज करते हैं, एक्सट्रावर्जन, इंट्रावर्जन, दिस एंड दैट, वो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं उसको कैप्चर नहीं करता।
इसलिए आलपोर्ट उसके यूनिकनेस को फोकस करते हैं, ठीक है। और आलपोर्ट ने जो है इंडिविजुअल को अपने स्टडी का अध्ययन का आधार बनाया, और इसके लिए इन्होंने मार्कोजेनिक साइंस का उपयोग किया। और मार्कोजेनिक को हम लोग पहले आइडियोग्राफिक के नाम से जानते हैं। आइडियोग्राफिक जो है, आपको जैसे पता है कि नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक दो मेथड है असेसमेंट के। और आइडियोग्राफिक एक तरह से इंडिविजुअल बेस्ड मेथड है, और नोमोथेटिक नॉर्म्स या जनरल मेथड है, ठीक है। जैसे ये नॉर्म्स पर चलता है, एवरेजिंग पर चलता है, जबकि आइडियोग्राफी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पर चलता है, यूनिकनेस पर चलता है, इंडिविजुअल डिफरेंस पर चलता है। आलपोर्ट ने जो है थ्योरी बिल्डिंग के लिए इक्लेक्टिक अप्रोच का इस्तेमाल किया है, और उनका मानना है कि जो थ्योरी है दैट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रॉड रादर देन नैरो। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर क्या उनका व्यू है। अब अभी मैंने जो है उनके अप्रोच की बात की, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं कि हम अगर पर्सनालिटी के असेसमेंट के अप्रोच को देखें तो दो तरह के अप्रोच हैं, नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक। जो बायोलॉजिकल थ्योरी है वो नोमोथेटिक अप्रोच यूज करती है, कि बायोलॉजिकल का मतलब ये कि ज्यादातर हेरिडिटरी चीजें होती है, और उसमें कॉमनलिटी जिसको कहते हैं, कॉमन होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आती रहती है। और आइडियोग्राफिक में जितनी लर्निंग थ्योरीज हैं, ठीक है, जैसे एक ही कंसेप्ट को जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और सबको उसको लर्न करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस पर आधारित है। तो जितनी लर्निंग थ्योरीज हैं वो ज्यादातर आइडियोग्राफिक अप्रोच को फॉलो करती हैं, ठीक है। अब थोड़ा और इसको आप क्लियर कर लें कि ये नोमोथेटिक और आइडियोग्राफी का क्या कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैंने इसको इशूज जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था, ठीक है। तो nomothetic attempt to generalize people, whereas ideographic focus on the recognition of uniqueness। ये बेसिक डिफरेंस है। ये जनरलाइज पीपल की बात करता है, जबकि आइडियोग्राफी यूनिकनेस की बात करता है। नोमोथेटिक यूजेज ऑब्जेक्टिव नॉलेज, ठीक है, जैसे सबके लिए जो समान है, बट आइडियोग्राफी यूजेज द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, जो हमारा अनुभव आपके अनुभव से भिन्न हो सकता है, ठीक है। नोमोथेटिक based on numerical data are data that can be categorized, whereas ideography based on the study of uniqueness of the individual. This is the basic difference between ideographic and nomothetic. Alport used this method, ideographic, which was later known in another term, that is we can say morphogenic. So by using this morphogenic method, Alport developed his theory of personality. Now see the little biography of Alport. Alport का जन्म जो है 1897 में जो है मोंटेजुमा इंडियाना में हुआ था। उनके जो पिता थे वो डॉक्टर थे, और उनकी माँ स्कूल टीचर थी। कई बार आपको बायोग्राफी आपको लगेगा कि हिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है, तो जब आप थ्योरीज पढ़ते हैं तो आपको जो है थ्योरिस्ट की हिस्ट्री जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि जो उसका बैकग्राउंड होता है वो उसके थ्योरी के डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा उसका रोल होता है, फोकस होता है, ठीक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है आलपोर्ट के बारे में, कि उनकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री थी वो फिलोसफी और इकोनॉमिक्स में थी इन 1990। हार्वर्ड से इन्होंने करा था। लेकिन उनकी फ्रायड के साथ एक एक्सीडेंटल मीटिंग होती है, फ्रायड से वो मिलते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं साइकोलॉजी में पीएचडी करने। 1939 में he was elected as a president of American Psychological Association. In 63 he received a gold medal award from APA, and in 64
awarded by the Distinguished Scientist Contribution Award अबेब। और 1967 में लंग कैंसर से उनकी डेथ हुई है। तो बहुत ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो किताबों में आपको उनके बारे में काफी कुछ लिखा गया है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। आलपोर्ट का पर्सनालिटी का अप्रोच क्या है? आलपोर्ट अपने इस पर्सनालिटी थ्योरी को डेवलप करने में जो 3 इंटर रिलेटेड प्रश्न हैं उनका आंसर, उनका समाधान ढूंढ रहे थे। पहला प्रश्न था व्हाट इज पर्सनालिटी या व्हाट पर्सनालिटी इज। सेकंड क्वेश्चन इज what is the role of conscious motivation in the personality theory, and third is what are the characteristic of psychological healthy person. These are the 3 basic questions जिसका आंसर ढूंढने में उन्होंने इस पर्सनालिटी थ्योरी का इजाद किया है। अब हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी क्या है। तो आपको आलपोर्ट के बारे में तो थोड़ा बहुत पता है, मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हैं शुरू में भी। कि आलपोर्ट ने पर्सनालिटी को किस रूप में डिफाइन किया। आलपोर्ट ने 1937 में पर्सनालिटी को जो डेफिनेशन दी है वो क्या है? द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोसोशल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। ये 37 की डेफिनेशन है। फिर आलपोर्ट ने पाया कि बहुत सी चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जैसे यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। भाई ये सबका अपना अलग अलग होता है, लेकिन इससे निर्धारित क्या हो रहा है। तो फिर बाद में 1961 में इन्होंने जो लास्ट का जो फ्रेज था उसको बदल दिया और कहा कि दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट। ठीक है। सो बाकी जो डिफिनेशन का पार्ट वैसे ही है 61 में, द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट। ठीक है। तो ये जो लास्ट के 4 वर्ड इन्होंने जो बदले हैं, कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट, ठीक है, ये इसलिए था कि इन्वायरमेंट में जो है एडजस्टमेंट को ही केवल हम पर्सनालिटी नहीं कह सकते। ठीक है। बल्कि निर्धारित किस चीज का हो रहा है, केवल एडजस्टमेंट नहीं है बल्कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके बिहेवियर को, उसके थॉट को भी हमारा ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करता है। ठीक है। अब इस डेफिनेशन की आप एनालिसिस करते हैं, हालांकि ये चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब मैं आपको नेचर एंड कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा था। तो व्हाट द पर्सनालिटी इज, अगर आप इस परिभाषा की व्याख्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आप पाते हैं कि आलपोर्ट के टर्म में कि पर्सनालिटी फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों, ओवर्ट और कवर्ट दोनों तरह के थॉट इसमें आते हैं। कवर्ट मतलब जो आपके अंदर चल रहे हैं, बिहेवियर क्या है, एक प्रकार का ओवर्ट है। डिटरमाइन, पर्सनालिटी बीइंग डिटरमाइन मतलब पर्सनालिटी क्या है नहीं, बल्कि क्या हो रही है, क्या बन रही है, क्या बनती है। ठीक है। सबस्टेंस एंड चेंज। ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक भी है और उसमें चेंज भी हो रहा है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बोथ। ठीक है। इट इज अ प्रोडक्ट आल्सो, मतलब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन जब आप करते हैं अपने साइकोफिजिकल सिस्टम का, तो एक प्रक्रिया भी है पर्सनालिटी बनने की या डेवलपमेंट की, और एक उसका जो आउटकम है जो आपके कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर और थॉट का निर्धारण करता है, तो प्रोडक्ट की। एंड स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ आ गया, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर भी है और ग्रोथ। और स्ट्रक्चर है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स मीन्स ग्रोथ। ठीक है। सो देयर इज स्टीडी ग्रोथ, फ्लक्चुएशन नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन स्टिल देयर इज ग्रोथ। तो ये पहला प्रश्न था जिसका जवाब उन्होंने ढूंढा। दूसरा प्रश्न जो था, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्शियस मोटिवेशन, जो है कॉन्शियस मोटिवेशन का
क्या प्रभाव होता है पर्सनालिटी। ठीक है, आलपोर्ट मानते हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है, ही इज अवेयर अबाउट हिज एक्टिंग। मतलब आप कोई भी व्यवहार करते हैं तो क्या करते हैं और क्यों करते हैं, व्हाट एंड व्हाई ऑफ योर बिहेवियर और रिएक्शन, यू आर अवेयर। ठीक है, तो लेकिन आलपोर्ट ने जो है अनकॉन्शियस जो प्रोसेसेस थे, ठीक है, उसके महत्व को इग्नोर नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो पीएचडी साइकोलॉजी में क्यों करना डिसाइड किए, आफ्टर हिज एक्सीडेंटल मीटिंग विद फ्रायड। तो आपको पता है कि फ्रायड जब उनके साथ मिलते हैं और फ्रायड से प्रभावित होते हैं, उसके बाद जब काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रायड के विचारों से भी वो प्रभावित रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अनकॉन्शियस मोटिवेशन के प्रभाव को जो है इग्नोर नहीं किया, अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, उनका भी मानना था कि जो है बहुत तरह के हिडन इम्पल्सेस है या जो ड्राइव्स है, जो हमारे व्यवहार के लिए मोटिवेशन का काम करती है। ठीक है, और हमारे जो भी कंपल्सिव बिहेवियर होते हैं वो एक तरह से ऑटोमेटिक रेपिटेशंस होते हैं। कंपल्सिव जो बिहेवियर्स है, ज्यादातर इसमें जो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है, ठीक है, वो हमारे अनकॉन्शियस टेंडेंसीज के द्वारा ही गवर्न होते हैं। ठीक है, और ये चीजें ज्यादातर चाइल्डहुड में उत्पन्न होती है और एडल्ट तक आप देखते हैं। तो जो एडल्ट में जो चाइल्डिश बिहेवियर है, ठीक है, वो इसी जो है अनकॉन्शियस प्रोसेस की वजह से, अनकॉन्शियस मोटिवेशन की वजह से ऐसा मानना था आलपोर्ट का। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी पर्सनालिटी। एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता हो। तो आलपोर्ट की जो एजम्पशन थे एक हेल्दी पर्सन के लिए कि हु इज द साइकोलॉजिकली मैच्योर पर्सन, या उसको हेल्दी को उन्होंने साइकोलॉजिकली मैच्योर पर्सन कहा। तो कहा कि साइकोलॉजिकली मैच्योर पीपल आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोएक्टिव बिहेवियर एंड मोटिवेटेड बाय कॉन्शियस प्रोसेस। ध्यान देने की चीज है, प्रोएक्टिव बिहेवियर मतलब ज्यादातर हम जो है जब अनकॉन्शियस से गवर्न होते हैं तो हमारा बिहेवियर रिएक्टिव होता है, प्रोएक्टिव नहीं होता है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि यू आर डूइंग समथिंग इन एडवांस विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी मोटिवेशन स्टिमुलस। ठीक है, अभी आप क्या करते हैं कि जब दीपक के होने के बाद जब अनुक्रिया करते हैं, स्टिमुलस के बाद जब रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो एक तरह से रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है इस मैच्योरिटी के लिए, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी के लिए, हेल्दी पर्सन के लिए 6 क्राइटेरिया बताए। पहला क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो इनका कहना था कि सभी लोगों में सेल्फ लव होता है। ठीक है, लेकिन हम मैच्योरिटी तभी उसको मानते हैं जब इस सेल्फ का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जो चीज आप अपने में देखते हैं, ठीक है, जो प्रेम आप अपने से करते हैं वो दूसरों से अगर आप करते हैं, ठीक है, तब वो उसको एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ को कहते हैं कि तब आप में मैच्योरिटी डेवलप होती है। ठीक है, जो चीज आपको बुरी लगती है वो दूसरे को भी बुरी लग सकती है। ठीक है, तो उस तरह से अगर आप व्यवहार करते हैं तो वो एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ में जाता है। Second criteria for a mature person or healthy person is warm relating of self to others। ठीक है, मतलब दूसरे लोगों के साथ इंटीमेट और कंपैशनेट मैनर में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। ठीक है, इमोशनल सिक्योरिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, या इसको कह सकते हैं तो इमोशनल जो है सिक्योरिटी अगर आप में है, यानी मेच्योरिटी है, अगर मैच्योर इंडिविजुअल को देखें तो ऐसे लोगों में जो है इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दे एक्सेप्ट देयर ओन इमोशंस। तो उसी को कहा सेल्फ एक्सेप्टेंस। मतलब आप जो भी हैं, अच्छे नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट, देन अदर्स विल एक्सेप्ट यू। चौथा इनका है, फोर्थ है कि रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ देयर एनवायरमेंट। आपका जो वातावरण है उसका परसेप्शन आपका डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी रियलिस्टिक। मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड न हो के प्रॉब्लम सेंटर्ड होना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, केवल अपने लाभ के लिए नहीं देखना चाहिए किसी चीज। फिफ्थ क्राइटेरिया जो था मेच्योरिटी का या हेल्दी पर्सन का, वो है इंसाइट एंड ह्यूमर। ठीक है, तो आलपोर्ट मानते हैं कि जो
हेल्दी पर्सन होते हैं उनमें सूझ होती है, अंतर्दृष्टि होती है, साथ साथ ह्यूमर होता है। और जिनका इनका जो सेल्फ सेंस ऑफ ह्यूमर है वो सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, ठीक है। दूसरों का मजाक बना कर ह्यूमर नहीं क्रिएट किया जाता है। ह्यूमर क्रिएट करने के लिए आइदर यू कैन डू विद द सिचुएशन और विद योर ओन सेल्फ, उसको कहा उन्होंने सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, ठीक है। छठा क्या है, यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ, मतलब आपके जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, पर्पस, गोल, दैट शुड बी क्लियर, ठीक है। तो यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो होता है ये धार्मिक भी हो सकता है और धार्मिक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मतलब विजन से है, गोल से है, लाइफ गोल से, ठीक है। दूसरा जो इसमें मेन एस्पेक्ट है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। अब पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर है इट्स रेफर टू द बेसिक यूनिक आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर हम फ्रायड को देखते हैं तो फ्रायड बेसिक स्ट्रक्चर पर्सनालिटी को मानते हैं इंस्टिंक्ट को। आइजेंक को देखते हैं तो कहते हैं कि आइजेंक की बायोलॉजिकली डिटरमाइंड फैक्टर्स है। लेकिन जब आलपोर्ट को देखते हैं तो आलपोर्ट कहते हैं कि जो इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द पर्सनालिटी, जिसको उन्होंने कहा पर्सनल डिस्पोजिशन, ठीक है। जो पर्सनल डिस्पोजिशन है वही पर्सनालिटी का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। और आलपोर्ट ने जो है कॉमन ट्रेड और इंडिविजुअल ट्रेड को बहुत ही सफाई से जो है उनको अलग किया, उनको विभेद किया। इनका मानना था कि कॉमन ट्रेड्स आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक हेल्ड इन कॉमन बाय मेनी पीपल, ठीक है। कॉमन ट्रेड जो होते हैं जो ज्यादातर लोगों में पाए जाते हैं, दे कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्टर एनालिटिक अप्रोच सच एज आइजैक एंड फाइव फैक्टर थ्योरी, or they can be revealed by various personality inventories. But individual traits or personal dispositions are of even greater importance because they permit researchers to study the single individual, ठीक है। तो कॉमन ट्रेड और इंडिविजुअल ट्रेड, पर्सनल डिस्पोजिशन जो है दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ आलपोर्ट। अब आलपोर्ट की जो है डेफिनेशन अगर हम देखते हैं इस पर्सनल डिस्पोजिशन की तो डिफाइन करते हैं कि पर्सनल डिस्पोजिशन इज अ जनरलाइज्ड न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर with the capacity to render many stimuli functionally equivalent and to initiate and guide consistent path of adaptive and stylish behavior, ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोजिशन एग्जैक्टली है क्या, वो ट्रेट्स है आपके, ठीक है, जिसको ट्रेट कहा था। ट्रेट्स को इन्होंने पर्सनल डिस्पोजिशन नाम किया। अब ये आगे कहते हैं कि टू आइडेंटिफाई पर्सनल डिस्पोजिशन आलपोर्ट ने जो है करीब 18,000 एग्जैक्ट नंबर उसका था 17,953 इतने पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन जो है उन्होंने जो वेबस्टर की न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, ठीक है, जो 1925 का जो एडिशन है उसमें इतने डिस्क्रिप्शंस पाए और वो लगभग उस पूरी डिक्शनरी का 1/4 था, ठीक है। तो ट्रेट और स्टेट दो तरह की चीजें होती हैं। ट्रेट्स जैसे सोशेबिलिटी, एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन। स्टेट क्या है, जैसे हैप्पी और एंग्री, ठीक है। अभी आप खुश हैं, दैट इज योर स्टेट, थोड़ी देर में आपका वो स्टेट बदल जाएगा, लेकिन ट्रेट नहीं बदलता है, ठीक है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो रहेंगी, बने रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी आप इंट्रोवर्ट हैं और 10 मिनट बाद आप एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। सो इफ यू टॉक अबाउट द लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन, आप देख सकते हैं कि 3 तरह के बेसिक पर्सनल डिस्पोजिशन है, ट्रेट्स है, जिसको हमने कहा कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स, ठीक है। अब कार्डिनल ट्रेट्स क्या है कि जो ट्रेट्स जो आपकी पर्सनालिटी में डोमिनेंट हो, इमिनेंट हो, ठीक है, और जो पर्सनालिटी को रूल करता हो, लीड करता हो, ठीक है। जैसे आपको महात्मा गांधी के बारे में पता है कि वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और ये ट्रेड सब में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कार्डिनल ट्रेड सब में नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रल ट्रेड्स, ठीक है, सभी लोगों में कई सेंट्रल ट्रेड्स हो सकते हैं,
जो 5 से 10 की संख्या में जनरली होते हैं, ठीक है। और इनका जीवन इसी 5-10 के इर्द गिर्द को घूमता रहता है, जिसको हम लोग सेंट्रल टेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेकेंडरी ट्रेड्स या सेकेंडरी डिस्पोजिशंस। पहले मैं यहाँ डिस्पोजिशन शब्द का ही उन्होंने यूज किया है। तो सेकेंडरी डिस्पोजिशंस है वह लेस प्रोमिनेंट पर ग्रेटर इन नंबर देन द सेंट्रल ट्रेड्स, ठीक है। ज्यादातर जो है ऐसे सेकेंडरी ट्रेड्स में बहुत से हो सकते हैं। तो कार्डिनल ट्रेड्स वो है जो एक या दो होते हैं और वो पूरी पर्सनालिटी को रूल करते हैं, लीड करते हैं, डोमिनेंट होते हैं। सेंट्रल ट्रेड 5 से 10 हो सकते हैं जिसके इर्द गिर्द आपकी पर्सनालिटी घूमती है। सेकेंडरी ट्रेड्स है, डिस्पोजिशंस है, ये जो है डोमिनेंसी में कम होते हैं लेकिन ये संख्या में ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कई बार जैसे आपका कपड़ा पहनने का अंदाज, बाल रखने का अंदाज, चलने का अंदाज, ये सब हो सकता है सेकेंडरी डिस्पोजिशन के अंदर, ठीक है। नाउ कम टू द मोटिवेशनल एंड स्टाइलिश डिस्पोजिशन। तो आलपुट कहते हैं कि जो भी पर्सनल डिस्पोजिशंस हैं वो जो है डायनामिक्स होते हैं, मतलब उनमें मोटिवेशनल पावर होता है, ठीक है। उसमें से कुछ स्ट्रांग मोटिवेशनल पावर के होते हैं, कुछ कम या वीक होते हैं, ठीक है। तो ये जो आलपोर्ट का मानना था कि वैसे जो डिस्पोजिशंस जो कि इंटेंसिवली, ठीक है, एक्सपीरियंस डिस्पोजिशंस हैं, उसको कहा इन्होंने मोटिवेशनल डिस्पोजिशन। मतलब जो जिनका पावर स्ट्रांगनेस ज्यादा होती है, ठीक है। और मोटिवेशनल डिस्पोजिशन की खासियत क्या होती है कि दैट कैन इनिशिएट द एक्शन लाइक ईटिंग। मतलब हंगर एक ऐसा मोटिवेशनल डिस्पोजिशन है जो ईटिंग को प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से पर्सनल डिस्पोजिशन जो कि रिलेटिवली कम इंटेंसिफाई होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग स्टाइलिश डिस्पोजिशंस कहते हैं। जैसे ये एक्शन इनिशिएट नहीं कर सकते बल्कि एक्शन को गाइडेड कर सकते हैं, जैसे बातचीत करने का जो आपका पोलाइटनेस है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ खाने के संदर्भ में देखें तो मोटिवेशनल डिस्पोजिशंस क्या है, ईटिंग। लेकिन जो है ईटिंग विद स्पून, दैट इज द स्टाइलिश डिस्पोजिशन, ठीक है। भूख लगी आपको खाना है, ये क्या है, मोटिवेशनल डिस्पोजिशन। बट कैसे खाना है, ये आपका स्टाइलिश डिस्पोजिशन, ठीक है। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी सेकंड एस्पेक्ट। मैंने पहले एस्पेक्ट में आपको बताया जो है पर्सनल डिस्पोजिशन। दूसरा जिसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है वो है प्रोप्रियम, ठीक है। तो इसमें इनका मानना था कि चाहे आपका पर्सनल डिस्पोजिशन मोटिवेशनल हो चाहे स्टाइलिश हो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे डिस्पोजिशंस होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी का कोर होता है, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पेरिफेरी में होते हैं। मतलब कोर और पेरिफेरी कुछ होते हैं जो सेंटर में होते हैं, जो होते हैं कुछ किनारे, मतलब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो सेंटर में होते हैं, जो कोर में होते हैं पर्सनालिटी के, वो पर्सनल डिस्पोजिशन जिनको हम लोग सेल्फ कहते हैं, स्व कहते हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं दैट इज माइंड, ठीक है। जैसे कोई काम कोई कर रहा है और आपको लग रहा है कि आप भी इसी तरह से काम करते हैं, तो कहते हैं ना कि दिस स्टाइल इज माइंड, ठीक है। तो ये जो जिसको कहते हैं इसी को इन्होंने कहा प्रोप्रियम, ठीक है। ऑल कैरेक्टरिस्टिक दैट आर पेक्युलरली माइंड बिलोंग टू द प्रोप्रियम, ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोजिशन जो कि आपके कोर सेंटर का है, कोर का है, पर्सनालिटी का कोर है, जिसको आप अपना मानते हैं, ठीक है, कि दिस इज माय यूनिक वे, यूनिक स्टाइल, ठीक है। आपका कोई चाहे वो स्टाइलिश हो चाहे मोटिवेशनल हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो अगर आपकी यूनिक है, ठीक है, वो आपकी कोर में है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोप्रियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं
डेवलपमेंट की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो पहला मैंने आपको इसके पहले स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात की, स्ट्रक्चर में आपको मैंने पर्सनल डिस्पोजिशन और प्रोफियम बताया। अब हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट के लिए चाहे आपने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी होंगे, सब में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो मोटिवेशनल एस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के किसी भी पर्सनालिटी का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आलपोर्ट का भी जो मानना था कि जो भी व्यक्ति की जो प्रेजेंट ड्राइव्स है वो उसके डेवलपमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि आपको पता है कि फ्रायड पास्ट ड्राइव्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, इंस्टिंक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो ये जो ड्राइव्स हैं, जो स्ट्राइविंग्स हैं, उनको इन्होंने कहा कि दो तरह के मोटिव्स होते हैं। पहला मोटिव है प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग। ठीक है, तो प्रोप्रिएट क्या है, एक तरह से जो पर्सनालिटी का कोर है। ठीक है, प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग क्या है कि स्ट्राइविंग सीक्स टू मेंटेन टेंशन एंड डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे आप किसी कोई जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो चीजें मेंटेन रहती हैं वो है प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, जो आपके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। दूसरा है पेरिफेरल मोटिव। इसका कंसेप्ट क्या है कि दैट रिड्यूस अ नीड। जैसे आपको भूख लगी, पेरिफेरल मोटिव, आपने तुरंत खाना खा लिया। प्यास लगी, पानी पी लिया। लेकिन जीवन का एक लक्ष्य है, ठीक है, और उस लक्ष्य को प्राप्त, लक्ष्य की प्राप्ति के तक के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग है। ठीक है, स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस। तो सच काइंड ऑफ मोटिवेशनल सिस्टम which maintain your tension and disequilibrium, that's why you are try to achieve your goal। ठीक है, तो जो एडल्ट बिहेवियर होता है उसमें ये रिएक्टिव और प्रोएक्टिव, ठीक है, दोनों तरह के जो है चीजें होती हैं। ठीक है, प्रोएक्टिव के लिए आपको प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग चाहिए, और रिएक्टिव जो आपका बिहेवियर है उसके लिए आपको पेरिफेरल मोटिव्स की बात होती है। अभी जो है, अब एक मोटिवेशनल थ्योरी में क्या होनी चाहिए, तो इनका मानना है कि इसमें दोनों ही चीजें, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों बिहेवियर को इंक्लूड किया जा सकता है या उसको करना चाहिए, ताकि जो है बिहेवियर को ठीक से एक्सप्लेन कर किया जा सके। ठीक है, आर्टपुट मानते हैं कि बहुत तरह के ह्यूमन मोटिव्स होते हैं जो फंक्शनली इंडिपेंडेंट होते हैं, जो अपने ओरिजिनल मोटिव्स होते हैं। ठीक है, उससे ये फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये फंक्शनली इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस है, तो इनको जो है किसी भी व्यवहार की व्याख्या के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर इसके पीछे कोई ऐसा हिडन कॉज या एजेंडा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शनल ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट या इंडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट इन्होंने एक तरह से दिया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली है क्या कि जैसे फंक्शनल इंडिपेंडेंसी का यह मतलब है कि जैसे आप पहले भूख लगती थी तो खाना खाते थे। ठीक है, तो हंगर एक प्रकार का आपका बायोलॉजिकल या बेसिक इंस्टिंक्ट है, लेकिन ये हंगर फिर कुछ विशिष्ट प्रकार की भूख में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे पैसा कमाने की भूख हो जाए। ठीक है, या इस तरह का कुछ भूख हो, कुछ कुछ स्पेशल उस पर्टिकुलर डिश खाने की भूख हो, तो वो जो है फंक्शनली ऑटोनॉमस है, वहां से स्वतंत्र है, वो भूख नहीं है एग्जैक्टली। जो एक एडिक्वेट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के लिए चार आवश्यकताएं होती है। पहला क्या है कि जो है विल एक्नॉलेज एंड कंटेम्परेरिटी ऑफ द मोटिव्स। एक्नॉलेज द कंटेम्परेरिटी ऑफ मोटिव्स। जो कंटेम्परेरीनेस है किसी भी मोटिव का, वो उस मोटिवेशन थ्योरी में होना है। मतलब हियर एंड नाउ, प्रेजेंट पर फोकस करें। दूसरी मोटिवेशन थ्योरी की जो विशेषता क्या होनी चाहिए, इट विल बी प्लूरिस्टिक थ्योरी, प्लूरल। ठीक है, तो अलाउइंग फॉर मोटिव्स ऑफ मेनी टाइप। थर्ड वन इज इट विल एस्क्राइब डायनामिक फोर्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक प्लानिंग एंड इंटेंशन। ठीक है, जैसे
लाइफ ऑफ हेल्दी एडल्ट्स आर फ्यूचर ओरिएंटेड, इन्वॉल्व प्रेफरेंसेस, पर्पस, प्लान, इंटेंशन। और जो चौथी इसकी रिक्वायरमेंट होती है एक मोटिवेशनल थ्योरी, अच्छे मोटिवेशनल थ्योरी की, कि दैट विल अलाउ फॉर द कॉन्क्रीट यूनिकनेस ऑफ द मोटिव। मतलब यूनिकनेस भी हो और कॉन्क्रीट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट कैन बी डिफाइंड, दैट कैन बी विजिबल। ये चार आवश्यकताएं किसी भी मोटिवेशन थ्योरी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और अगर हम फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फंक्शनल ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट को देखें आलपोर्ट के, तो ये जो है आलपोर्ट का जो है के सिद्धांत का ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, या कह सकते हैं कि डायनेमिक फोर्सेस है, ठीक है। और फंक्शनल ऑटोनॉमी जैसे कि अभी मैंने बताया कि क्या है, ठीक है, कि एक प्रकार से ऐसे मोटिव जो अपने बेसिक ओरिजिन जिससे हुआ है, जिससे ओरिजिन हुई है, उससे ये स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा भूख, तो भूख, अगर पैसा कमाने की किसी की भूख हो जाए, किसी को जो है ज्ञान प्राप्त करने की भूख हो जाए, ठीक है, या इस तरह का कोई कुछ खास तरह के डिश खाने की भूख हो, तो वो फंक्शनल ऑटोनॉमस हो जाता है। आलपोर्ट ने डिफाइन किया है फंक्शनल ऑटोनॉमी को कि एनी एक्वायर्ड सिस्टम ऑफ मोटिवेशन which the tension involved are not the same kind of antecedent tension from which the acquired system developed। ठीक है, तो जिस सिस्टम से डेवलप हुआ है उस तरह का जो है टेंशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा भूख की बात की, तो भूख अगर डेवलप हुई है, तो अगर नॉर्मल भूख है तो आप किसी भी तरह के जो है खाकर उसको शांत कर सकते हैं। लेकिन किसी खास डिश की भूख है तो वो उस तरह की भूख नहीं है, ठीक है, जिसको सेटिस्फाई करना तुरंत आवश्यक भी नहीं है, ठीक है। तो फंक्शनल ऑटोनॉमी जो होता है, ऑब्वियसली जो भी मैंने चार क्राइटेरिया बताया वो उसको फुलफिल करता है। अगर हम फंक्शनल ऑटोनॉमी के लेवल की बात करें तो दो तरह की फंक्शनल ऑटोनॉमी है, दो लेवल की। पहले को हम लोग कहते हैं परसेवरेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी, ये जो ज्यादातर एनिमल और ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, और इसका जो है प्रिंसिपल न्यूरोलॉजिकल होता है। जैसे खासतौर से एडिक्शन टू अल्कोहल, टोबैको और अदर ड्रग्स व्हेन देयर इज नो फिजियोलॉजिकल हंगर ऑफ देम, ठीक है। अब फंक्शनल ऑटोनॉमी आपको ज्यादा यहाँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि मतलब किसी को अल्कोहल की नीड है, ठीक है, उसकी अल्कोहल की भूख है, लेकिन ऐसी कोई फिजियोलॉजिकल हंगर नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ऑटोनॉमी ये है, मतलब आपको भूख है, प्यास हो सकती है, लेकिन आपको क्या खाने की भूख है, कोई स्पेशल डिश, क्या पीने की भूख है, तो अल्कोहल की है, ड्रग्स की है, ठीक है। इसका कोई दैहिक आधार नहीं है। अगर वो शरीर में आपके शर्करा के लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से अनकम्प्लीटेड टास्क भी एक परसिवरेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी हो सकता है, ठीक है। अनकम्प्लीटेड टास्क आपने इसको अपने लोअर लेवल पर पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग जाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अनकम्प्लीटेड कोई टास्क होता है जब आपके जीवन में, तो वो एक प्रकार से आपको हमेशा मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। तीसरा दूसरा जो लेवल है उसको हम लोग कहते हैं appropriate functional autonomy। और appropriate functional autonomy क्या है? This is the master system of motivation that confer unity of personality is appropriate functional autonomy, which refers to the self-sustaining motive that are related to the proprium। Self-sustaining motive that is related to the proprium। Proprium क्या है? That is the core of your personality। इसमें ज्यादातर जो है ऑक्यूपेशनल हॉबीज, इंटरेस्ट, जो आपके पर्सनालिटी के क्लोज होते हैं, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करते हैं कोई काम करने के लिए, वो प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये दो लेवल के फंक्शनल ऑटोनॉमी हो गई। अब हम आते हैं क्राइटेरिया की। अगर बात करें तो फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है, तो इसका जो क्राइटेरिया कि न्यू प्रॉब्लम में लीड टू हर टू सीक न्यू गोल्स एंड सेट हायर लेवल ऑफ एस्पिरेशन, बट द प्रोसेस विच इज नॉट द फंक्शनली ऑटोनॉमस, उसके लिए इन्होंने 8 प्रकार के प्रोसेस की चर्चा आलपोर्ट में की है कि कौन सी चीजें हैं जो फंक्शनली ऑटोनॉमस नहीं है। जैसे बायोलॉजिकल ड्राइव, जैसे ईटिंग, ब्रीदिंग और स्लीपिंग। मोटिव डायरेक्टली लिंक टू द रिडक्शन ऑफ बेसिक नीड ड्राइव्स।
reflex actions such as eye blink, constitutional equipment like physical, intellectual and temperament. Habit is the process of being formed. ठीक है. Pattern of behavior that require primary reinforcement, sublimation that can be tied to the childhood sexual desires, and some neurotic and pathological symptoms. These are not the functionally autonomous. ठीक है. अब हम बात करें अगर स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट की, तो आलपोर्ट के अनुसार जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है इन 8 अवस्थाओं में होता है. बॉडीली सेंस, जो बच्चा इनिशियली जब होता है. सेल्फ आइडेंटिटी, जब वो अपने बारे में थोड़ा बहुत जानना का प्रयास करता है. ईगो इन्हांसमेंट, ठीक है, जब वो अपने ईगो मतलब खुद के बारे में अपनी आइडेंटिटी की पहचान उसकी थोड़ी और बढ़ती है. एक्सटेंशन, ईगो एक्सटेंशन का मतलब जो अपनी चीज है उसको वो दूसरे में, जिसको सेल्फ एक्सटेंशन भी आप कहते हैं. सेल्फ इमेज, खुद की जो इमेज क्रिएट होने लगती है इस अवस्था में. रैशनल एजेंट, ठीक है, इसको रैशनल कूपर भी आप कह सकते हैं. ठीक है, रैशनली सिचुएशन के साथ कोप करने की जो टेंडेंसी डेवलप होती है. 7वां है प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, मतलब कुछ ऐसे मोटिवेशन सिस्टम्स आप में डेवलप हो जाते हैं जिसके लिए आप हमेशा एक्सीलेंस के लिए प्रयास करते रहते हैं. और लास्ट होता है द नोवर, सेल्फ एज ए नोवर, मीन्स आप जीवन की इस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर आप जो है कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है प्रयास करना. ज्ञान का मतलब ये नौकरी के लिए ज्ञान प्राप्त करने वाला नहीं होता है. जैसे कोई रिटायरमेंट के बाद मैंने एक बंदे को देखा था कि वो रोज जो है डिक्शनरी उठाकर वर्ड मीनिंग याद करते थे, पढ़ते थे, उसको सीखते थे. ठीक है, तो उस तरह की जो है कैपेसिटी, ये स्टेजेस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के. अगर हम स्टडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो मैंने शुरू में ही बताया कि आलपोर्ट का जो अप्रोच था वो मार्फोजेनिक साइंस का था. उन्होंने मार्फोजेनिक और आइडियोग्राफी दोनों सेम तरह के ही होते हैं, ठीक है, लेकिन मार्फोजेनिक थोड़ा सा एडवांस होता है. स्टडी ऑफ आइडियोग्राफिक इंफॉर्मेशन दैट विच आर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल केस. मार्फोजेनिक प्रोसीजर में क्या है, जैसे डायरी है, लेटर्स है, ठीक है, इनके आधार पर कह सकते हैं. आइडियोग्राफी और मार्फोजेनिक दोनों इंडिविजुअल की जो है अध्ययन करते हैं, लेकिन आइडियोग्राफिक की प्रॉब्लम क्या है कि वो स्ट्रक्चर है, पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं करता है. इसलिए जो है आलपोर्ट ने आइडियोग्राफी के बाद जो है थोड़ा सा जो मार्फोजेनिक एडवांसमेंट है इसमें अध्ययन किया. ठीक है, और मार्फोजेनिक में आप जो है पर्सनालिटी के उसके पैटर्न को, उसके प्रॉपर्टीज को, ठीक है, उसका इंटरपर्सनल कंपैरिजन, इन सब सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये जो है इसके लिए इन्होंने डायरी मेथड और लेटर मेथड ये सब सारी चीजों का इस्तेमाल किया हुआ है. अगर हम आलपोर्ट के सिद्धांत को इवेलुएट करें तो आप पाएंगे कि आलपोर्ट का जो सिद्धांत था वो पर्सिमनी और इंटरनल कंसिस्टेंसी पर हाई है. मतलब पर्सिमनी का मतलब है कि बहुत कम उसमें कॉन्सेप्ट में बहुत चीजों को एक्सप्लेन करने में सक्षम है, और इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब इनकी ज्यादा है. तो अगर आप रिसर्च करते हैं तो इनके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं एक दूसरे से जो है जुड़े हुए पाते हैं आप. मॉडरेट हैं जनरेटिंग रिसर्च और गाइडिंग एक्शन, मतलब एप्लीकेबिलिटी और रिसर्च के मामले में इनका जो इम्पैक्ट है मॉडरेट है. लेकिन दो ऐसे चीजें हैं जिसमें पासिफिएबिलिटी और ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, इस पर ये लो है. ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज का मतलब यहाँ पर है कि और ऑब्जर्वर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर वीक है. और फाल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो फैक्ट हैं, जो थ्योरीज हैं, उनको गलत होने की कितनी संभावना है. तो यहाँ पर भी ये जो है एक तरह से इनके कॉन्सेप्ट को आप गलत तो नहीं साबित कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट मोर एंड लेस एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताए हैं, जैसे प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग का बताया, फंक्शनल ऑटोनॉमी का बताया, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. लास्ट जो कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी का. और आलपोर्ट का जो व्यू है ह्यूमैनिटी का वो ऑप्टिमिस्ट है. भले ही वो फ्राइड से मिले और उनसे प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि जो है इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के प्रति उनका जो अप्रोच है वो ऑप्टिमिस्ट है, और वो व्यक्ति को गोल ओरिएंटेड, प्रोएक्टिव और अपने तमाम तरह के फोर्सेस से मोटिवेटेड होने वाला व्यक्ति मानते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ वो कॉन्शियसनेस की जो है प्रभाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन अनकॉन्शियस. अर्ली चाइल्ड एक्सपीरियंसेस जो है
वो इनके हिसाब से बहुत कम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो अभी आपकी प्रेजेंट की जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। तो इस तरह से जो इनकी जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है वो व्यक्ति की सिमिलरिटीज और यूनिकनेस दोनों पर फोकस करती है। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज के कुछ पॉइंट है, जैसे फ्री चॉइस को इन्होंने डिटर्मिनिज्म के ऊपर फोकस किया, focus on optimism rather than pessimism, focus on conscious rather than unconscious, focus on social influence rather than biological, and focus on uniqueness rather than similarities. तो पॉइंट्स में ये चीजें आपको देख सकते हैं कि व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इन टर्म्स ऑफ आलपोर्ट। ये एक फिगर है, हालांकि आपको हमको नहीं लग रहा है कि बहुत, अगर आप स्क्रीन मोबाइल में देख रहे होंगे तो बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अगर लैपटॉप में देखेंगे तो ये इस थ्योरी का पूरा जिस्ट है। ठीक है। आलपोर्ट की जो थ्योरी है, देखिए, आलपोर्ट अप्रोच टू द पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, मोटिवेशन, ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, क्रिटिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, ये जितना था उस सबका एक, मतलब क्या, उसको आप कह सकते हैं कि पिक्चोरियल व्यू में आप देख सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड इन दिस थ्योरी, and now if you have any query you can ask. कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा नहीं है, चलिए अच्छी बात है। सो कोई एक जो है अटेंडेंस शेयर कर देगा। ठीक है। दोस्तों, यू देयर? यस सर। स्क्रीनशॉट लिए हो? यस सर। ठीक है, तो आप शेयर कर देना ग्रुप में। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था हम्म, कि हम लोग को इस पर्टिकुलर पेपर में जो असाइनमेंट्स है वो ऋचा मैम ने थोड़े दिए हैं उनके एक यूनिट के हिसाब से, बाकी असाइनमेंट सर वो कैसे मिलेगा हम लोग को? किसको उन्होंने दी है ये तो हमको पता भी नहीं है। और बाकी ये तो कायदे से हेड साहब को दे देना चाहिए कि किसको कौन सा बच्चा असाइन होगा, तो उसके अनुसार मिल जाता है। ये तो प्रॉब्लम है इस पेपर में ना, कई लोग जब पढ़ाते हैं तो ये दिक्कत होता है। मेरे 2 यूनिट है, तो ऑब्वियसली मेरे असाइनमेंट भी ज्यादा बच्चों को होंगे, लेकिन किसको मिला और किसको देना है ये प्रॉब्लमेटिक है ना। चलिए, डिसाइड हो जाएगा तो फिर बता देंगे। ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू।